Welcome everybody. This is our fourth video in JEE Main previous year questions for class 11th chapter units and measurement. Before this we have made three videos, and in those three videos we covered up to question 60 or 61 I think, and this will be the final video for this chapter. And after this video we will start second chapter. First we will do NEET questions, NEET previous, then we will start JEE previous. And if you like our work, then please like these videos, share these videos, and subscribe to our channel, because more you share, more you subscribe, more YouTube algorithm knows that these videos are useful for people, so more it recommend it to more people. And also, if you like to donate something us or support us, then you can scan these QR code and donate whatever amount you want. This amount help us to get new books, so that we can provide you new series questions, and also a better computer hardware, so we can provide you videos in better quality, in a 4K or something like that. So with this, let's start today's video, and we will be starting from, I think, question 61. So yeah, we will be starting from question number 61, and here is on your screen question number 61. So a student measures time period of 100 oscillations. So there are 100 oscillations, so n is 100. The data set is 100 oscillations for 4 times. So means, uh, when he taking observation, he is taking for 100 oscillations, and then he takes one value for those 100 oscillations. So we have oscillations are 100 and values are 4. So we have taken 4 measurements. Let me make it slightly thinner, sorry. So values are 90, 91, 95 and 92. So 90, 91, 95 and 92. If the minimum division in the measuring clock is 1 second, then the reported mean time should be. So here it is mentioned that minimum divisions of the measuring clock is 1 second. Means the minimum value that clock can measure is 1 second. So there can be an error of plus minus 1 second. So these actual values will be like this. So first we take mean of all of these, and all of these values have errors like this, plus minus 1, because what we can have error of 1 second, possible error of 1 second or less than 1 second. So we are rounding, writing it as plus minus 1. So to calculate the actual error, what we will do, we will find the mean value, and then we find the mean absolute errors. Okay, so n is equal to mean value by 4, or when you solve this you will get 368 by 4, and it will be 92. So our mean value is 92. Now what is the write it as a1, a2, a3 and a4. So what is the error in a1? So delta a1 is, it will be mean value minus value. So 92 minus 90, it will be 2. Delta a2, it will be 1. a3 a3 is 92 minus 95 minus 3, and delta a4, it will be 92 minus 92, 0.
Now these are the mean errors, absolute errors. So now what will be the mean absolute error, or delta A, and it is mean absolute error. So it will be modulus of delta A1 plus delta A2 modulus plus delta A3 modulus plus delta A4 modulus by 4, because we have 4 observations. So it will be 2 plus 1 plus 3 plus 0 by 4, and it is 4, 6 by 4 or 1.5. 6 by 4, 1.5. So our mean value will be A mean plus minus mean absolute error. So it will be 92 plus minus 1.5. नाउ आपको अभी ये डाउट आ सकता है कि जब हमने यहाँ पे ये मेजरिंग क्लॉक का 1 सेकंड का एरर है, जब यहाँ पे लिखा हुआ है द मिनिमम डेविएशन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकंड, देन द रिपोर्टेड मीन वैल्यू विल बी, तो आपने इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया? जो यहाँ पे मिनिमम डिवीजन है मेजरिंग क्लॉक की, मींस क्लॉक कम से कम इतना मेजर कर सकता है, तो क्लॉक का लीस्ट काउंट क्या है? 1 सेकंड. सो जब भी आप प्लस माइनस यहाँ पे वैल्यू लिखते हो, सपोज आप ऐसे लिख रहे हो दैट A इज इक्वल टू A मीन प्लस माइनस डेल्टा A, तो ये जो डेल्टा A होता है इट इज नॉट दिस एरर जो लीस्ट काउंट की वजह से आ सकता है, ये होता है जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना एरर है. तो यहाँ पे जो ये एरर्स लिखे हुए हैं, दीज आर फॉर नॉट लीस्ट काउंट एरर्स, दीज आर फॉर कि मीन वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना एरर है. दैट्स व्हाई हमने ये एज इट इज कैलकुलेशन की, और हमने यहाँ पे जो ये 1 वैल्यू थी इसको यूज नहीं किया. ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपको ऐसे क्वेश्चन हो और वहां पे मेजरमेंट की वैल्यू गिवन हो और आपको फाइनल वैल्यू बना ली हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है? आपको सभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और उस मीन वैल्यू कैलकुलेट करके फिर आपको ईच ऑब्जर्वेशन का एरर निकालना है, और उस एरर का आपको मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करके मीन प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर ही आपका फाइनल आंसर होगा. सो आगे बढ़ते हैं. सो अगेन हमारे पास ये इस सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और ये हम ऑलरेडी 2-3 टाइम्स कर चुके हैं कि जो टाइम पीरियड है उसके लिए ये फॉर्मूला है अंडर रूट एल बाई जी, और जब यहाँ से आप जी के लिए एरर निकालते हो, बिकॉज यहाँ पे भी जी डिटर्मिनेशन है, सो जी के लिए जब एरर निकाला जाता है परसेंटेज एरर, सो इट कम्स आउट टू बी डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी इंटू 100. सो जस्ट हमें डेल्टा एल बाई एल और डेल्टा टी बाई टी कैलकुलेट करना है. So now here it is mentioned that measuring values L is 20 centimeter, so L 20 centimeter है, known to 1 mm accuracy. यहाँ पे जो डेल्टा L है that is 1 mm, और 1 mm को आप लिख सकते हो बिकॉज ये सेंटीमीटर में, तो आप इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.1 सेंटीमीटर. नाउ टाइम फॉर 100 oscillations for the pendulum is found is 90 second. So it is mentioned कि 100 oscillations का टाइम 90 सेकेंड है, और आपने सिंगल ऑब्जर्वेशन के अंदर 100 oscillations लिए. ये अलग अलग ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपने एक ऑब्जर्वेशन ली उसके अंदर ही 100 oscillations थी, तो एक ऑसिलेशन का टाइम हो जाएगा 90 by 100 सेकेंड. बिको एंड और जो रिस्ट वाच थी उसका रेजोल्यूशन 1 सेकेंड का है, मींस जब आपने 100 oscillation लिए तो उसमें पॉसिबल एरर कितना है मेजरमेंट में? 1 सेकेंड का. तो एक ऑसिलेशन के मेजरमेंट में कितना पॉसिबल एरर होगा? 1 by 100 सेकेंड. सो टी की वैल्यू है 90 by 100 एंड डेल्टा टी की वैल्यू है 1 by 100, और ये भी सेकेंड में है, ये भी सेकेंड में है. वैल्यूज पुट करते हैं. 0.1 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर into 100 plus twice of delta t 1 by 100 plus divide by 90 by 100 multiply 100. So centimeter cancelled
and it will be 1/200 into 100, so half, और यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 90 यहाँ से 0 से कैंसिल होगा, तो इट विल बी 20/9, और 20/9 होगा 2.2 और अप्रोक्सीमेट, और ये होगा 0.5 और ये 2.2, सो 2.7%, और अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसको फर्दर एवरेज करते हो तो 3% राउंडिंग में, सो आंसर हो जाएगा 3%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो diameter of a steel ball is measured using vernier caliper which have division of 0.1 centimeter on main scale। तो देखिए यहाँ पे मेन स्केल की वैल्यू गिवन है, यानी कि 1 मेल स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, और उसके बाद गिवन है एंड 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर आर मैच 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, सो 10 वर्नियर इज इक्वल टू 9 मेन स्केल, और यहाँ से 1 वर्नियर आ जाएगा 9/10 मेन स्केल, और जो वर्नियर है उसका लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, वर्नियर स्केल, जो मेन स्केल का लीस्ट काउंट है वो 0.1 है, 1 MSD के इक्वल, ये मेन स्केल का लीस्ट काउंट है, सो इट विल बी 1 MSD minus 1 VSD, तो 1 MSD minus 1 VSD is 9/10 MSD, और जब आप इसको सोल्व करोगे इट विल बी 1/10 MSD, और MSD की वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 0.01 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट। सो नाउ 3 मेजरमेंट ली गई है, मेन स्केल की वैल्यू गिवन है और वर्नियर स्केल की डिविजन्स गिवन है, और 0 एरर गिवन है, तो हमें मीन करेक्टेड डायमीटर बताना है कि मीन करेक्टेड डायमीटर कितना होगा। तो हम पहले सीरियल नंबर 1 पे करते हैं ऑब्जर्वेशन को। तो सीरियल नंबर की 1 की ऑब्जर्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो मेन स्केल की वैल्यू एज इट इज आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन है, डिविजन्स में नहीं गिवन, प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन में गिवन है, तो 8 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर दैट इज 0.01, और 0 एरर भी है नेगेटिव, सो -0.03, सो इट विल बी 0.5, ये 0.08 होगा और ये -0.03 है, सो इट विल बी 0.05, सो फर्स्ट रीडिंग विल बी 0.55, एंड ओह वी मेड अ मिस्टेक, 0 एरर नेगेटिव है और 0 एरर को नेगेटिव 0 एरर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, सो यह प्लस होगा, इट विल बी 11 एंड इट विल बी 61, ये याद रखिएगा, 0 एरर ऑलवेज सब्ट्रैक्ट किया जाता है और ये नेगेटिव 0 एरर है। सो सेकंड पे आते हैं, तो ये सेकंड हो जाएगी, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है, 8 मल्टीप्लाई 0.01 प्लस 0.03, सो इट विल बी सॉरी 4, ये 4 है, यहाँ पे 4 है, सो इट विल बी फाइनल रीडिंग 0.57, और अगर थर्ड देखें हम तो थर्ड केस में जो रीडिंग होगी इट विल बी 0.5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 0.01 प्लस 0.03, सो 0.59, ये हो जाएगी हमारी थर्ड रीडिंग। तो अब इनका मीन निकालना है हमें, सो ए मीन वैल्यू हो जाएगी 0.61 प्लस 0.57 प्लस 0.59 बाय 3, और मीन वैल्यू आ जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हो कि ये 0.59 है, यहाँ से आप 2 ऐड इसमें कर दे तो ये 0.59 और इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट तो 0.59, सो आंसर विल बी 0.59, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। सो ये वो क्वेश्चन है, ये एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें आप ये जो हमने, अगर आपने हमारी थ्योरी की क्लास देखी हो एरर्स के रिगार्डिंग, तो हमने वहां पे आपको बताया था कि एरर्स जो है आप डेरिवेटिव से भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहाँ पे हम उसी डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे। सो करंट इन अ डायोड गिवन है, सो I इज इक्वल टू E 1000 V by T minus 1 मिली एम्पियर।
तो यहाँ पे जो V है वो वोल्टेज है, T टेम्परेचर है इन केल्विन, और जो स्टूडेंट है मेक्स एरर इन वोल्टेज, वोल्टेज के अंदर कितना एरर करता है, +-1। ओके, सो और उसके बाद और while measuring the current of 5 milliampere, so current is 5 milliampere and temperature is 300 Kelvin, और उसके बाद जो वोल्टेज का एरर है डेल्टा V इज इक्वल टू +-0.01 वोल्ट। तो हमें क्या करना है, करंट की मेजरमेंट में एरर बताना है कि करंट की मेजरमेंट में कितना एरर होगा। तो अगर आपको इस वे में, अगर आपके पास कोई ऐसा रैंडम सा फॉर्मूला आ जाता है जहाँ पे आप इजीली एरर कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आपको जस्ट क्या करना होगा, आप वहां पे डेरिवेटिव लीजिए। सो ई आई इज इक्वल टू 1000 V/T -1, ये फॉर्मूला हमें गिवन है। एंड हमें यहाँ पे किसमें एरर दिया गया, ओनली वोल्टेज के अंदर एरर है, बाकी किसी चीज के अंदर एरर नहीं है। करंट तो मेजर्ड वैल्यू है, तो इसके अंदर एरर हमें मिलेगा। जो हमारे यहाँ पे राइट हैंड साइड है, यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल है, एक तो ई है, ये तो मैथमेटिकल कांस्टेंट है, तो इस पे कोई एरर नहीं हो सकता। वी के अंदर एरर प्रोवाइडेड है, और जो टी है वो टेम्परेचर है, उसके अंदर कोई एरर प्रोवाइडेड नहीं है, तो हम इसको कांस्टेंट मान के चलेंगे। सो नाउ हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। आई का डेरिवेटिव डी आई ई 1000 V/T -1 का कोई डेरिवेटिव नहीं होगा, ये एज इट इज आया। और नाउ अब जो इसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव आएगा, तो उसका डेरिवेटिव में 1000 एज इट इज बिकॉज मल्टीप्लाई में है, टी एज इट इज बिकॉज मल्टीप्लाई में है, और जो v है उसका बन जाएगा dv, मींस एरर इन v। और ये नॉर्मल डेरिवेटिव है। अगर आपने डेरिवेटिव्स नहीं आते इतना अभी, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे हमने थ्योरी की क्लास में कवर किया है कि आप डेरिवेटिव्स कैसे ले सकते हैं ऐसे फंक्शंस का। आपके पास यहाँ पे दो फंक्शन है इसके अंदर, इट इज लाइक a माइनस बी, आई इज इक्वल टू a माइनस बी। तो आप क्या करेंगे, इसमें डेरिवेटिव ऑफ a माइनस डेरिवेटिव ऑफ b। अब जो 1 है वो कांस्टेंट है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो आपके पास ओनली बचेगा डेरिवेटिव ऑफ a, और a क्या है 1000 V/T माइन, दिस इज a। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो e रेज टू पावर x की डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव कर रहे हो तो e रेज टू पावर x एज इट इज आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x यानी डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर आएगा। सो यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव करोगे आप, तो 1000 V/T, एंड नाउ डेरिवेटिव ऑफ 1000 V/T, तो 1000/T इज कांस्टेंट, और मल्टीप्लाई में तो एज इट इज, और v का डेरिवेटिव dv। सो ऐसे आ जाएगा ना। तो ये आपके पास i की वैल्यू, di की वैल्यू आ गई, मींस एरर की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करोगे, di को i से डिवाइड कर दोगे। सो आपके पास बच जाएगा di/i इज इक्वल टू e 1000 V/T into 1000 T by dv divided by e 1000 V/T -1। ओके, सो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, दैट जो e होता है, e की एक्चुअल वैल्यू होती है 2.71। ओके, और अब आप उसमें जो टेम्परेचर है, ये केल्विन का टेम्परेचर है, t किसमें है, केल्विन में। तो केल्विन कभी नेगेटिव नहीं होता, केल्विन या तो 0 हो सकता है या उससे पॉजिटिव होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी केल्विन की वैल्यू 273 होती है, 273.15 डिग्री केल्विन। और जो वोल्टेज है उसकी भी आपके पास वैल्यू पॉजिटिव है। सो जो 1000 V/T वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, मींस सपोज लीजिए ये 5 आ जाएगा, इसको अगर हाइपोथेटिकल हम वैल्यू कैलकुलेट करें, तो ये सपोज e रेज टू पावर 5 है, और ये है -1। तो जो e रेज टू पावर 5 है, यानी कि e की वैल्यू होती है 2.71। अगर आप इसको ओनली 2 भी लो, और 2 की वैल्यू आप 5 करते हो, तो इट विल बी 32। तो 32 -1 31 होगा। तो ये जो आपकी वैल्यू है e रेज टू पावर 1000 V/T, ये इस 1 से बहुत ज्यादा होने वाली है। तो हम क्या कर देंगे, सो दैट हम इजीली कैलकुलेट कर पाए, हम इस 1 को इग्नोर करेंगे यहाँ पे। तो जो आपका फाइनल आंसर बनेगा, इट विल बी e 1000 V/T 1000 T dV divide
1000 V/T, हमने 1 को इग्नोर कर दिया और अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो। बिकॉज हम एरर एनालिसिस कर रहे हैं तो हम स्मॉल एरर्स की बात करते हैं, दैट्स इन सिनेरियो में हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो अब थोड़ा सा जस्ट हमें थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करना होगा, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सो di/i इज इक्वल टू 1000t dv, और यहाँ से आप राइट कर सकते हैं दैट di इज इक्वल टू 1000t इंटू आई इंटू dv। सो 1000 टेम्परेचर कितना गिवन है, 300 केल्विन ऑलरेडी गिवन है, एंड आई की वैल्यू 5 मिली एम्पियर यानी कि 5 इंटू 10⁻³ और डेल्टा वी की वैल्यू गिवन है प्लस माइनस 0.01 और 1/100। सो यूजिंग दिस ये 3000 और ये 1000 एंड 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास बचेगा इट विल बी 5/3 मल्टीप्लाई ये 3 और ये 2 5, ये 10⁻⁻5, ये वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी। नाउ अगर हम इसको फर्दर लेके जाएं तो इट विल बी 3/5 होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻5, और इसको आप लिख सकते हो 0.0166 10⁻⁻3, बिकॉज आई है ये तो एम्पियर में आएगा, और इसको आप फर्दर लिख सकते हो इट विल बी 0.017 मिली एम्पियर। अगर हम ऑप्शन मैच करें तो जो 0.017 है इसको फर्दर राउंड ऑफ कर सकते हो, इट विल बी 0.02 मिली एम्पियर, एंड ये हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है दिस विल बी द राइट आंसर। वी हैव मेड ए मिस्टेक हियर, हमने टेम्परेचर को 3000 ले लिया, एक्चुअली टेम्परेचर 300 था, तो यहाँ पे क्या होगा, एक जीरो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। सो यहाँ से एक जीरो एलिमिनेट होगी तो यहाँ पे पावर -4 आएगी, यहाँ पे -4, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, और इट विल बी यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 0.17, और ये आंसर होगा 0.2 मिली एम्पियर, और जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। सो यहाँ पे इसको रब कर देते हैं। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। हमने टाइम जो टेम्परेचर था वो हमने मिस्टेक करके 3000 ले लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, a student measured the length of a road and wrote that it is 3.5 centimeter. The instrument did he use to measure? So ये मेंशन किया गया है कि जो स्टूडेंट ने जो लेंथ लिखी इट इज 3.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ पहला ऑप्शन है मीटर स्केल। अब जो मीटर स्केल होगी, मीटर स्केल के अंदर मार्किंग किसकी होंगी? अगर आपके पास एक ऐसे मीटर स्केल है सपोज, तो मीटर स्केल के अंदर मार्किंग किसकी होंगी? सेंटीमीटर की होंगी। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, सपोज अगर वो 1 मीटर की स्केल है, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि 10 सेंटीमीटर की मार्किंग हो। तो अगर ऐसी मार्किंग है तो आप जो सेंटीमीटर है उसको पॉइंट्स में मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे जो मार्किंग है वो कंप्लीट सेंटीमीटर की मार्किंग है। वहां पे आप जो पार्शियल सेंटीमीटर है, बिकॉज यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर पार्शियल वैल्यू है आपके पास, आप उसको मेजर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए पॉसिबल नहीं है। नाउ हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, ए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में गिवन है कि यहाँ पे 10 डिवीजन है। सो 10 VSD है यहाँ पे और 9 MSD है, और साथ में ये गिवन है कि मेन स्केल में 10 डिवीजन है, मेन स्केल हैज 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। अगर हम सेकंड ऑप्शन में बात करें तो 10 of main scale division
इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल की 1 मेन स्केल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो ये आ गया मेन स्केल का लीस्ट काउंट। और साथ में ये मेंशन है दैट 10 ऑफ VSD इज इक्वल टू 9 ऑफ MSD। तो यहां से जब आप लीस्ट काउंट निकालोगे, किसका, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर निकालोगे, तो इट विल बी 1/10 ऑफ MSD, बिकॉज हम ये मल्टीपल टाइम कर चुके हैं। आप इसको कर भी सकते हो। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट इज 1 ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। और यहाँ से आप 1 वर्नियर स्केल की वैल्यू निकाल के यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। सो इट विल बी 0.01 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें, सेकंड ऑप्शन में जो हमारी मेन स्केल है, मेन स्केल से हम 0.1 सेंटीमीटर को मेजर कर सकते हैं। मींस जो हमारी रीडिंग आ सकती हैं दोज विल बी लाइक 0.1 आ सकती है, 0.9 आ सकती है, 1 पॉइंट इसका मल्टीपल आ सकती है, 1.8 आ सकती है, 1.9 आ सकती है। ओके, बट हमें चाहिए 3.50। तो मेन स्केल से तो हमें 1.9 तक मिल जाएगा या 3.5 तक मिल जाएगा, बट जो वर्नियर स्केल है वो हमें सेकंड डेसिमल तक देगी वैल्यू। और यहाँ पे हमारे पास सेकंड डेसिमल तक की वैल्यू है, मींस जो हमारा ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसको हम फर्दर वेरिफिकेशन के लिए हम थर्ड ऑप्शन भी देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन में क्या गिवन है कि वो कहाँ तक मेजरमेंट कर सकता है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वहां पे स्क्रू गेज है, उसके अंदर 100 डिवीजन है और पिच गिवन है 1 mm की। सो पिच गिवन है 1 mm और नंबर ऑफ डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे, सर्कुलर स्केल डिवीजन आर 100। तो सर इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 mm बाय 100, और 1 mm को आप लिख सकते हो 0.1 सेंटीमीटर बाय 100। सो इट विल बी 0.001 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट होगा ये वाले स्क्रू गेज का। तो मींस अगर उसका लिस्ट काउंट ये है तो आप इससे जो भी वैल्यू मेजर करोगे वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगी। मींस इससे जो आप वैल्यू, सपोज आपने 19 रोटेशन वो ली, 19 नंबर मैच होता है स्क्रू गेज के ऊपर, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.19 सेंटीमीटर आंसर में। तो आप ये देखोगे कि जो ये वाला आंसर है इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स ज्यादा है, यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, जबकि जो आपको वैल्यू दी गई है उसमें ओनली 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। सिमिलरली जब आप फोर्थ वाले के साथ देखोगे तो इसके अंदर भी यही सिनेरियो होगा कि इसके अंदर इसका जो एरर होगा, इसका जो लिस्ट काउंट आएगा दैट विल बी, यहाँ पे अगर 50 आ जाता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मींस जो फोर्थ ऑप्शन का लिस्ट काउंट आएगा, जो आपका डी ऑप्शन, इट विल बी 0.02 सेंटीमीटर। तो मींस इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट ज्यादा है, डिजिट्स ज्यादा है, और इसकी वैल्यू भी मोर प्रिसाइज होंगी एज कंपेयर टू जो हमें आंसर क्वेश्चन में गिवन है कि आपका प्रिसीजन सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर है। सो ऑप्शन बी राइट होगा। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। पहला ऑप्शन मीटर स्केल गिवन है, तो मीटर स्केल में क्या होता है, जो मार्किंग होगी वो सेंटीमीटर्स की होंगी, उसमें कंप्लीट सेंटीमीटर होंगे, लाइक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो उस सिनेरियो में आप ये जो पार्शियल सेंटीमीटर ये मेजर नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में आपको 10 मेन स्केल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर गिवन है और 10 डिवीजन 9 डिवीजन के बराबर है, 10 वर्नियर 9 मेन के बराबर है। तो यहाँ से आप अगर वर्नियर का लीस्ट काउंट निकालते हो तो इट इज 0.01 सेंटीमीटर। और आप ये देख सकते हो कि अगर आप इसको 0.01 को अगर आप 350 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नोट 350, 35 से मल्टीप्लाई कर दो अगर सपोज करो, तो इट विल बी 335 बाय 100 और इट विल बी 0.35 नोट, हाँ 350 से ही मल्टीप्लाई करिए आप इसको, तो अगर 350 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा और आंसर आपका ये आएगा। मींस वर्नियर स्केल पे अगर आप 350 नंबर ऑफ मार्किंग ले लोगे तो आप इस आंसर तक पहुंच सकते हो। मींस जो ये वर्नियर स्केल है ये इस वैल्यू को मेजर कर सकती है। जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है ये दोनों भी इसको मेजर कर सकते हैं, बट
जब ये इस वैल्यू को मेजर कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपका आंसर कुछ ऐसे आएगा 3.50। यहाँ पे एक एडिशनल जीरो आएगी बिकॉज इसके जो लिस्ट काउंट है वो मोर प्रिसाइज है। सो दैट्स वाई आपको सिर्फ इतना प्रिसीजन पूछा गया है, ना कि ये प्रिसीजन। तो आपको सिर्फ इतना प्रिसीजन वाला इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना है जो कि है वर्नियर कैलिपर। आप इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो को रिवाइंड करके। यहाँ पे प्रिसीजन का खेल है सारा का सारा कि कितना प्रिसीजन पूछा गया है, आपको डिवाइस भी वही सिलेक्ट करना है जो उतने प्रिसीजन तक वैल्यू दे सके, उससे ज्यादा प्रिसीजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैच करना है एक दूसरे के साथ। इसमें आप ये देख सकते हैं एक जगह पे रोटेशन मेंशन है, एक जगह पे रिवोल्यूशन मेंशन है। जो रोटेशन होता है उसमें ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड ही घूमता है, मींस एक्सिस जो एक्सिस है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही होता है। और जो रिवोल्यूशन होता है उसमें ऑब्जेक्ट का जो एक्सिस है रोटेशन का वो बाहर होता है। मींस जैसे अगर हम ये देखें कि ये सन है और ये अर्थ है, तो सन जो अर्थ है सन के अराउंड वो क्या करती है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। अब हमें यहाँ पे टाइम पीरियड के साथ मैच करना है। तो टाइम पीरियड में आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा टाइम है दैट इज 10⁻⁷ सेकेंड। तो सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ होना चाहिए, रिवोल्यूशन के अंदर, क्योंकि अर्थ है जो सन के अराउंड जो चक्कर लगाती है 365 दिनों में लगाती है, तो वो सबसे ज्यादा टाइम होगा यहाँ पे। और जो अर्थ की रोटेशन है वो 24 आवर्स में हो जाती है, तो वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। 24 आवर्स में समथिंग सेकंड्स होंगी, मींस 24 इंटू 60 इंटू 60 ये समथिंग सेकंड्स होंगी। बट ये 365 से ज्यादा नहीं हो सकती बिकॉज यहाँ पे जो सेकंड्स होंगी वो मल्टीप्लाई 60 मींस जो सबसे बड़ी दो वैल्यू होंगी वो यही होंगी। तो 2 के साथ 2 मैच होगा और 1 के साथ 1 मैच होगा। सो 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 1 के साथ 1, 2 के साथ 2। तो ऑप्शन ए और बी, ए और सी में से कोई वन आंसर करेक्ट होगा। नाउ कमिंग टू पीरियड ऑफ लाइट वेव, कि लाइट वेव का पीरियड कितना है। सो वी नो दैट जो लाइट की स्पीड होती है दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम कोई एक लाइट वेव ले लेते हैं जो उसकी विजिबल से हम ले लेते हैं। सपोज हम एक 400 नैनोमीटर की लाइट वेव ले लेते हैं। ये जो लाइट है ये ब्लू कलर से ब्लू वाले रीजन से बिलोंग करती है, तो इसको आप लिख सकते हो 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये लैम्डा की बात हो रही है यहाँ पे। सो 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, या हम 3 ले लेते हैं सो दैट हम इजिली कट कर पाए 300 नैनोमीटर, बिकॉज हमें जस्ट आइडिया लेना है। अब हम क्या कर सकते हैं, सी का लिए फॉर्मूला होता है दैट इज लैम्डा टाइम फ्रीक्वेंसी, और हमें यहाँ पे टाइम पीरियड काटना है तो निकालना है। तो टाइम पीरियड होता है 1/t, फ्रीक्वेंसी का हाफ, 1/, फ्रीक्वेंसी इज 1/, टाइम पीरियड। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाता है लैम्डा बाय सी। टाइम पीरियड ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। सो 3 इंटू 10⁻⁻6 बाय 3 इंटू 10⁻8। सो 3 से 3 कैंसल, और आप इसको देखते हो तो ये 10⁻⁻4 के ऑर्डर की आती है। मींस जो पीरियड ऑफ लाइट है वो भी इस रीजन में लाई करेगा। एक जो पावर है वो एक दो ऊपर नीचे हो सकती है। सो पीरियड ऑफ लाइट वेव ऑप्शन 3 से मैच करेगा, और तो फोर्थ बच गया 4 से। सो ऑप्शन ए 3344 आप ऐसे मैच कर सकते हो। या आप ऐसे भी कर सकते हो, जो साउंड वेव होती है उसको हम हर्ट्ज में मापते हैं, और जो हम ऑडिबल साउंड वेव है वो हम लेते हैं 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर हम बीच में कोई एक 10,000 हर्ट्ज की वेव को सिलेक्ट कर लें, उसकी फ्रीक्वेंसी 10,000 हर्ट्ज है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 1/10,000, और ये आ जाएगा 10⁻⁻4। तो इसको आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 10⁻⁻3 के आपको पास मिलेगा। सो पीरियड ऑफ साउंड वेव 10⁻⁻4। तो आप कोई भी एक लेके कैलकुलेट कर सकते हो।
आगे बढ़ते हैं. So in the experiment of calibration of voltmeter, a standard cell of EMF 1.1 volt is balanced against 440 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियल वायर. तो अगर आपने पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा हो तो वहां पे क्या होता है कि आप पोटेंशियल को लेंथ के अगेंस्ट बैलेंस करते हो. सो पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. सो यहाँ पे मेंशन है दैट 1.1 वोल्ट का जो पोटेंशियल है वो कितने पे बैलेंस होता है, 44 सेंटीमीटर पे. प्रोपोर्शनलिटी में कोई कांस्टेंट होगा, हम कांस्टेंट के बारे में वरी नहीं कर रहे. नाउ आगे बढ़ते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी बैलेंस अगेंस्ट 220 सेंटीमीटर ऑफ द वायर. द कोरस्पॉन्डिंग रीडिंग इन द वोल्टमीटर इज 0.5 वोल्ट. मींस 0.5 वोल्ट किसके अगेंस्ट बैलेंस होता है, एक कोई रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट पे 220 सेंटीमीटर पे बैलेंस होता है. मींस एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ऑफ ए रेजिस्टेंस 220 सेंटीमीटर पे बैलेंस होता है. और उसकी जो वो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल है उसकी वैल्यू पाई गई 0.5 वोल्ट. द एरर इन रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर. सो मान लो कि जब हमने 0.5 को मेजर किया, इसके अंदर कोई एरर था डेल्टा वी. मींस 0.5 प्लस माइनस डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू 220 सेंटीमीटर. और अभी आपको ये भी डाउट आ सकता है कि सर तो 1.1 वोल्ट में भी एरर हो सकता है, तो वहां पे हमने एरर क्यों नहीं लिया, इस केस में डेल्टा वी यहाँ पे क्यों नहीं लिया. बिकॉज ये बोला गया है ये एक स्टैंडर्ड सेल है, तो स्टैंडर्ड सेल के केस में एरर नहीं हो सकता. जो मेजरमेंट है सिर्फ उसके केस में एरर होता है. स्टैंडर्ड सेल के केस में आप मेजरमेंट करते ही नहीं, आप गिवन वैल्यू को लेते हो, तो दैट्स वाई इसमें कोई एरर नहीं हो सकता. तो यहाँ पे हमारे पास ये वन इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है. हम दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड. और डिवाइड करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी भी खत्म हो जाएगी. सो 1.1 डिवाइड 0.5 प्लस माइनस डेल्टा वी इज इक्वल टू 440 बाय 220. So it will be 2 1.1 क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 डेल्टा वी. इधर से लाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम इसको. सो इट विल बी 0.1 is equal to plus minus 2 delta V, and delta V plus minus is equal to 0.1 by 2 is equal to 0.05 volt. So हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बिकॉज हमारे पास दोनों साइन आए, प्लस माइनस, तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द साइन वी चूज. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. An experiment is performed to obtain a value of acceleration due to gravity by using simple pendulum. अगेन यहाँ पे जी की डिटर्मिनेशन में हमें एरर निकालना है, तो वी नो द फॉर्मूला डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस ट्वाइस डेल्टा टी बाय टी इंटू 100. सो अब आगे बढ़ते हैं इसमें. ये तो यहाँ पे मेंशन है कि 100 ऑसिलेशन का टाइम मेजर किया गया, वॉच विद 1 सेकंड ऑफ लीस्ट काउंट इज फाउंड टू बी 90 सेकंड. तो ये क्वेश्चन हम शायद ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन भी शायद जेई में रिपीट हुआ है. तो यहाँ पे जो डेल्टा टी होगा 1 सेकंड का एरर है 100 ऑसिलेशंस में, तो एक ऑसिलेशन में 1/100 सेकंड का एरर होगा. और 90 सेकंड टाइम है 100 ऑसिलेशंस के लिए, तो एक ऑसिलेशन का टाइम हो जाएगा 90/100 सेकंड. एंड इसका आंसर शायद 2.7 आया था लास्ट टाइम पे. और साथ में हम ये भी देख लेते हैं जो डेल्टा एल वगैरह है. लेंथ के केस में लीस्ट काउंट है 0.1 m, यानी कि एरर डेल्टा एल इज 0.1 सेंटीमीटर. ये 1 mm है, इसको 0.1 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है. एंड एल इज 20 सेंटीमीटर. सो पुटिंग वैल्यूज हमारे पास आएगा 0.1 by 20 इंटू 100 प्लस 2 1/100 by 90/100 multiply 100. So it will be, ये आएगा यहाँ से 0.5 plus and it will be 20/9. So it will be 2.2 plus 0.5 2.7%.
आंसर होगा, जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था वहां पे इसको राउंड ऑफ करके 3% बना दिया था शायद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ resistance of a given wire is obtained by measuring the current flowing in it and the voltage difference applied across it. If percentage error in the measurement of current and voltage each are 3%, so the error in resistance. So हमें ओम्स लॉ से फॉर्मूला पता होता है that according to Ohm's law V is equal to IR। तो रेजिस्टेंस में एरर निकालना है तो वी नो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा V बाय I और डेल्टा R बाय R इंटू 100 इक्वल्स टू डेल्टा V बाय V इंटू 100 प्लस डेल्टा I बाय I इंटू 100। तो ये हमारे पास एरर हो जाएंगे और ये गिवन है कि वोल्टेज और करंट में 3% ईच का एरर है। सो दिस इज 3, दिस इज 3 पॉइंट प्लस 3 6%। सो आंसर विल बी 6%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो ये गिवन है कि मेन स्केल पे 58.5 डिग्री है और वर्नियर स्केल पे कितना है, 9 डिविजन्स मैच होती है। नाउ given that one division on main scale correspond to 0.5 degree, means one main scale is equal to 0.5 degree. Total division on the vernier scale are 30 and match with 29 division of main scale. अब जितनी आप वर्नियर स्केल पे डिवीजन बढ़ाते जाओगे उतनी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। सो यहाँ पे मेंशन है 30 वर्नियर स्केल is equal to 29 main scale, and so one vernier scale is equal to 29 by 30 main scale, और जो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर का इट इज 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। सो 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर इज 29 by 30 मेन स्केल, और जब आप इसको सोल्व करोगे इट विल बी 1 by 30 मेन स्केल, एंड मेन स्केल की वैल्यू है 1 by 30 इंटू 0.5 डिग्री। सो 0.5 डिग्री, सो इट विल बी 0.5 डिग्री by 30 लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। सो हमें फाइनल आंसर निकालना है और यहाँ पे जीरो एरर के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो जीरो एरर नहीं है। सो हमारा आंसर हो जाएगा, मेन स्केल की वैल्यू में डिग्री में गिवन है ऑलरेडी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मेन स्केल की वैल्यू डिविजन्स में गिवन होती तो फिर हम इसको मेन स्केल की लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये वर्नियर स्केल की 9th डिवीजन मैच होती है, सो 9 मल्टीप्लाई जो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर आया है इट इज 0.5 by 30, so it will be 3 10, so 58.5 degree plus 1.5 by 10, it will be 0.15 degree, so answer will be 58.65 degree, option C is the right answer। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 71 क्वेश्चन, n division of main scale of vernier caliper coincide with n plus 1 division of the vernier scale. If each division of main scale is a units, then the least count of the instrument. So ये भी हम जस्ट हमने अभी प्रीवियसली लास्ट क्वेश्चन में इसका मैथमेटिक्स किया। सो यहाँ पे गिवन है दैट वन मेन स्केल इज इक्वल टू ए यूनिट्स, सो हम 1 MSD को लिख देते हैं ए के इक्वल, ओके। और साथ में गिवन है n प्लस डिवीजन ऑफ वर्नियर, n divisions of main scale coincide with n plus 1 division of vernier. So n plus vernier is equal to n main scale, और मेन स्केल की वैल्यू हमें कितनी गिवन है a, so it will be na, na is equal to n plus 1 VSD, so and 1 VSD is equal to na by n plus 1। तो हमें यहाँ पे निकालना है लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट होता है वर्नियर स्केल का
1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD की वैल्यू है A और 1 VSD की वैल्यू है AN बाय n+1। सो यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, इट विल बी AN plus A minus AN, so answer will be A by n+1, option D. Next question. A student measured the diameter of a wire using screw gauge of least count 0.001 centimeter listed in the measurement. The measure should be recorded as. So अगर आप देखें तो least count कितना है screw gauge का 0.001 सेंटीमीटर। मीन्स जो आपका आंसर है उसके अंदर भी इतनी ही एक्यूरेसी होनी चाहिए जितनी यहाँ पे लीस्ट काउंट के अंदर है। और इसके अंदर आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स देख सकते हैं, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आपके आंसर में भी कितने होने चाहिए 4। तो यहाँ पे देखते हैं आप, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 हैं और यहाँ पे 4 है। तो ऑप्शन डी ही आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। A screw gauge gives following reading when used to measure the diameter. मेन स्केल पे 0 mm, सर्कुलर स्केल पे 52 डिवीजन्स मिलते हैं। And given that 1 mm of the scale correspond to 100 divisions of circular scale. तो 1 mm of main scale correspond to 100 divisions। जो 100 divisions यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन वाली जो वैल्यू होती है मेन स्केल की, उसको पिच बोला जाता है। तो यहाँ पे पिच हो जाएगी 1 mm और इसको आप लिख सकते हो 0.1 सेंटीमीटर, बिकॉज जो आंसर है वो सेंटीमीटर में है, तो हम सेंटीमीटर में लेके चलते हैं। और हमें कैसे पता चलता है कि ये पिच है? बिकॉज यहाँ पे 100 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल गिवन है और ये कभी मेंशन नहीं है कि सर्कुलर स्केल में इससे ज्यादा डिवीजन है। तो अगर सर्कुलर स्केल के अंदर ये मान के चलें कि 100 डिवीजन्स हैं, तो 100 डिवीजन कब क्रॉस होंगी? जब आप उसको कंप्लीट रोटेशन दोगे, यानी कि एक रोटेशन की वैल्यू 1 mm है और उसी को क्या बोला जाता है? पिच। कि जब आप सर्कुलर स्केल पे एक रोटेशन करो तो मेन स्केल की जो वैल्यू मिलती है उसको पिच बोलते हैं। तो यहाँ पे पिच इज 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर। सो लीस्ट काउंट हो जाएगा किसका? सर्कुलर स्केल का। वो होता है पिच बाय यानी कि 0.1 सेंटीमीटर बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर, दैट इज 100। सो आंसर विल बी 0.001 सेंटीमीटर। नाउ मेन स्केल की वैल्यू है 0 प्लस सर्कुलर स्केल पे जो मैच होता है दैट इज 52 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर, सो 0.01। सो आंसर विल बी 0.052 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट बताने हैं, तो पहला ऑप्शन है 23.023, सेकेंड इज 0.003 एंड थर्ड इज 2.1 इंटू 10⁻⁻3। तो इसके अंदर जो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं दीज आर 5। इसके अंदर हैं जो, ये भी 5 है, बिकॉज ये मेजरमेंट जब इसको मेजर किया गया तो ये वैल्यू मिली थी, सो ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट। और इसके अंदर जो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं दोज आर 2, सो आंसर इज 552। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट द एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड यूजिंग, so 29 division of the main scale exactly coincide with 30 division of vernier scale. So it is given 29 or 30 of vernier scale coincides with 29 of main scale, and so one of vernier scale is 29 by 30 main scale. So यहाँ से जो least count होगा, least count will be 1 main scale by minus 1 vernier scale. So 1 minus 29 by 30 of main scale, 1 by 30 of main scale. आगे गिवन है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज हाफ ए डिग्री और 0.5 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट कितना है? 0.5 डिग्री। तो यहाँ से जो लीस्ट काउंट होगा, लीस्ट काउंट विल बी 1 by 30 ऑफ 0.5 डिग्री। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू, और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो अलग यूनिट है, यहाँ पे हाफ मिनट, हाफ डिग्री, 1 डिग्री, 1 मिनट ऐसे गिवन है। तो जो डिग्रीज होती हैं एंगल्स के केस में,
जब वो फ्रैक्शंस में आती हैं तो उनको मिनट्स और सेकंड में लिखा जाता है। और फॉर योर रेफरेंस, जो 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री के अंदर हमारे पास होती है 60 मिनट्स और इसको 1 स्लैश से लिखा जाता है। और जो 1 मिनट होती है उसके अंदर होते हैं हमारे पास 60 सेकंड्स, उसको डबल स्लैश से लिखा जाता है। तो अगर सपोज कीजिए आपको लिखना है 20, अगर आपको 1.5 डिग्री आपको लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 डिग्री, और जो 0.5 होगा उसको आप लिख सकते हो 30 मिनट्स। ओके, सो यहाँ पे 0.5 डिग्री है तो इसको आप लिख सकते हो 30 मिनट्स। सो 1/30 इंटू 30 मिनट्स, तो इट विल बी 1 मिनट। सो लीस्ट काउंट विल बी 1 मिनट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास m, मास गिवन है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसकी स्पीड गिवन है, मोमेंटम बताना है। सो इट इज क्वाइट इजी, बट यहाँ पे जो मेन खेल है दैट इज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो अगर आप मोमेंटम डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे 3.513 मल्टीप्लाई 5.00, तो जो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर विल बी 65 to 75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर ये आएगा। बट अगर आप सिग्निफिकेंट एनालिसिस करो, बिकॉज ये आपका जेई का क्वेश्चन है, तो इट शुड बी नॉट दैट मच इजी कि आपको डायरेक्टली आंसर दे दिया जाएगा। अगर आप सिग्निफिकेंट एनालिसिस करते हो और आपको ये पता है कि मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट लेना होता है, तो यहाँ पे लीस्ट, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट है, तो आपके आंसर के अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट होने चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप राउंडिंग करोगे, राउंड करोगे आप इसको 3 सिग्निफिकेंट में, और ये आपके 2 डिजिट हैं। ये अगर आप इसको 2 की स्केल पे देखते हो तो ये 50 से ऊपर है, तो मीन्स आप इसको राउंड करके यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो आंसर इज 17.6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन ए। और आज का हमारा और फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। 2 full turns of circular scale of a screw gauge covers a distance of 1 mm। तो यहाँ पे गिवन है 2 टर्न में कितना डिस्टेंस कवर होता है, 1 mm ऑन मेन स्केल। तो एक टर्न में कितना होगा, 1/2 mm और 0.5 mm, और यही क्या हो जाएगी, पिच। जो एक टर्न में डिस्टेंस कवर होता है मेन स्केल पे उसको पिच बोला जाता है, तो यहाँ पे पिच 0.5 mm हो जाएगी। और सर्कुलर स्केल पे डिविजन्स गिवन है 50, सर्कुलर स्केल डिविजन्स है 50, तो जो लीस्ट काउंट हो जाएगा सर्कुलर स्केल का, इट विल बी 0.5 mm बाय 50। सो इसको आप लिख सकते हो लाइक दिस, 5/500 mm और 1/100 और 0.01 mm। Further, it is found that screw gauge has error negative 0 एरर गिवन है, और आपको पता है कि 0 एरर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ये ऐड हो जाएगा। नाउ आगे मेजरमेंट पे आते हैं, तो मेन स्केल पे वैल्यू मिलती है 3 mm, और सर्कुलर स्केल की जो मैच होती है डिवीजन दैट इज 35। सो मेन स्केल पे हमारे पास है 3 mm। नाउ प्लस जो हमारी सर्कुलर स्केल है उस पे जो नंबर लाइन मैच होती है सर्कुलर की दैट इज 35, मल्टीप्लाई जो सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट है इट इज 0.01 mm, और माइनस 0 एरर, और 0 एरर नेगेटिव है, सो 0.03 mm। और यहाँ पे हमने एक 0 एडिशनल कर लिख दी, ये 0 नहीं आएगी। सो 3 mm प्लस it will be 0.35 mm minus plus 0.03 mm, आप सबको ऐड करोगे तो it will be 3.38 mm। so option D is the right answer। एंड विद दिस, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था क्लास 11th यूनिट्स एंड डायमेंशंस के लिए, जो इसके प्रीवियस ईयर्स थे अप टू 2020 कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को।
और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको जितना शेयर करेंगे उतना ही यूट्यूब एल्गोरिथम को पता लगता है दैट दीज वीडियोज आर यूजफुल फॉर सम पीपल, सो दे इट शुड रेकमेंड इट टू मोर पीपल। एंड अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो भी अमाउंट देते हैं हम उससे न्यू बुक्स बाय कर पाएंगे, सो दैट हम और बेटर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर पाएं, और साथ ही बेटर हमारे पास एक कंप्यूटर अगर बेटर हार्डवेयर होगा तो हम और अच्छी क्वालिटी में ये वीडियोस आपके लिए बना पाएंगे। एंड आल्सो अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो आपके सजेशंस हों हम उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सो विद दिस हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वी विल स्टार्ट नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो इट विल बी second chapter. First we will do for NEET previous year, then we will do JEE again previous years. And thanks for watching. Keep on sharing, keep on subscribing. We will meet in next video.